आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्वैश किए गए दो मामलों की चर्चा है, जिसमें सेक्शन 420 आईपीसी के क्रिमिनल केसेस शामिल हैं। हमने फेल्ड प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज के ऐसे कई मामलों में वीडियोस दिए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रेप न मानते हुए मामले में क्वैशिंग को मंजूरी दी है। लेकिन रेप के झूठे आरोप के अलावा अन्य किसी मामले में भी क्वैशिंग कैसे संभव है, यह आज की वीडियो में देखा जा सकता है। हमारे कई व्यूअर्स ने हमें लिखा है कि हम इंग्लिश में भी वीडियोस बनाया करें, तो प्रयोग के तौर पर आज हम इस वीडियो में जिन दो केसेस का जिक्र करेंगे उनमें से पहला इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में होगा। आप सभी से विनयपूर्ण अनुरोध है कि हमें बताएं कि हम केवल हिंदी में वीडियोस दें या केवल इंग्लिश में वीडियोस दें या दोनों में मिलाकर वीडियोस दें, उसी के अनुसार हम आगे किया करेंगे। आज की वीडियो हमें जिन लीगल पॉइंट्स को समझाएगी वे इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज लीगली एसेंशियल फॉर क्वैशिंग ऑफ एन एफआईआर एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। सेकंड पॉइंट इज व्हाट आर द लीगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 420 आईपीसी। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द अब्यूज ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर अलाउइंग क्वैशिंग ऑफ एन एफआईआर एंड अदर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। द फर्स्ट, हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। The first matter today is Wyeth Limited versus State of Bihar. It is Criminal Appeal number 1224 of 2022. Date of decision was 11th August 2022, means just a few days back. The matter was decided by Justice Indira Banerjee and Justice V. Rama Subramaniam. In this case, the complainant filed a private complaint under Section 200 CRPC along with an application under Section 156(3) CRPC. The Magisterial Court directed the police to register an FIR and the FIR was registered under Section 406, 420, 408, 460, 471, 384, 311, 193, 196 IPC read with Section 120B IPC. The accused, feeling aggrieved by this FIR, approached the High Court under Section 482 CRPC for quashing of this FIR. His petition was dismissed by the High Court and the matter was taken before the Apex Court. The accused appellant contended before the Supreme Court, number 1, that the complaint filed does not disclose the commission of a cognizable offense. The second point was that the complaint was only a counterblast to the civil suit filed by the appellant number 1 and a criminal complaint lodged by the appellants against respondent number 2. The third point before the Supreme Court, it was argued that the High Court did not peruse the charge sheet for refusing to quash it. The accused appellants submitted that the High Court at least ought to have perused the charge sheet before arriving at a conclusion whether to quash the FIR or not. Supreme Court heard the matter and passed a judgment. In para number 14, it observed a careful reading of the complaint, the gist of which we have extracted above, would show that none of the ingredients of any of the offences complained against the appellants are made out. Even if all the averments contained in the complaint are taken to be true, it is supposed that these are all true and proved, they do not make out any of the offences alleged against the appellants. Therefore, we do not know how an FIR was registered and a charge sheet was also filed. The Supreme Court felt surprised by all these derelictions. The Supreme Court further observed that the High Court was clearly in error in overlooking the application for bringing on record the subsequent developments of the filing of the charge sheet and the prayer for inclusion of the relief of quashing of the charge sheet in the original petition. The Supreme Court further confirmed that the proposition that if no offense is made out by a careful reading of the complaint, that complaint deserves to be quashed. Consequently, the appeal was allowed and the impugned order of the High Court was set aside. What happened thereafter? That the FIR and its subsequent proceedings were also bound to be quashed.
इसके बाद आज का दूसरा केस है रेखा जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्रिमिनल अपील नंबर 749 ऑफ 2022। डेट ऑफ डिसीजन था 10 मई 2022। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्नम की बेंच ने यह डिसाइड किया था। शिकायतकर्ता ने कमलेश मूलचंद जैन, जो रेखा जैन के पति थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने गलत बयानी, प्रलोभन और धोखा देने के इरादे से 2 किलो 27 ग्राम सोने के आभूषण उस कंप्लेनेंट से ले लिए थे, जिस पर सेक्शन 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान आरोपी की पत्नी रेखा जैन फरार पाई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि कमलेश मूलचंद जैन द्वारा लिए गए आभूषण रेखा जैन के पास हैं, इसलिए पुलिस ने रेखा जैन के खिलाफ भी सेक्शन 420 आईपीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। रेखा जैन ने अपने खिलाफ एफआईआर व क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रद्द कराने के लिए सेक्शन 482 सीआरपीसी में कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रद्द करने से इनकार कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने रेखा जैन ने तर्क दिया कि जब उसके द्वारा प्रलोभन का कोई आरोप ही नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने सेक्शन 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध किया है। ऐसे में उस पर सेक्शन 420 का मुकदमा चलाना या कार्रवाई करना यह अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद कहा, सेक्शन 420 आईपीसी के अनुसार जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, उसे सेक्शन 420 आईपीसी के तहत अपराध कहा जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के खिलाफ मामला बनाने के लिए सेक्शन 420 आईपीसी के तहत अपराध किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए एक बेईमान प्रलोभन अवश्य होना चाहिए। वर्तमान मामले में सेक्शन 420 आईपीसी के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। रेखा जैन पर किसी तरह का प्रलोभन का आरोप नहीं है। बेईमानी के प्रलोभन और धोखाधड़ी के आरोप उसके पति मूलचंद कमलेश जैन के खिलाफ हैं। इसलिए एफआईआर या शिकायत में आरोपों को मानते हुए बेईमानी के किसी भी आरोप के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि रेखा जैन ने सेक्शन 420 आईपीसी के तहत कोई भी अपराध किया है जिसके लिए उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करनी हो। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने रेखा जैन के विरुद्ध की गई सभी कार्रवाई को और एफआईआर को निरस्त कर दिया, यानी कि क्वैश कर दिया। अब हम आपके सामने एक वास्तविक केस का जिक्र करते हैं। राजस्थान में एक प्रधानाचार्य के रिटायर होने वाले दिन से 2-4 दिन पहले एक जूनियर शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को पत्र लिखा कि शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के आदेश के अनुसार उक्त प्रधानाचार्य ने बिल्डिंग फंड में गबन किया है, अतः उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज कर दी गई और कई वर्षों से अवैध चल रही है। ना तो प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई सबूत मिला है, इसलिए चार्जशीट भी फाइल नहीं की जा सकी है। प्रधानाचार्य बेल पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास गए, सेशन कोर्ट के पास गए और उसके बाद हाई कोर्ट के पास भी गए, लेकिन कोई उन्हें बेल भी नहीं दे रहा है। बेल माने अग्रिम जमानत। तो क्या उन्हें सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जाना चाहिए? प्रधानाचार्य के लिए सेक्शन 482 सीआरपीसी के आधार क्या हो? हमारे अनुसार इन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, किसी भी क्रिमिनल केस में कोई भी व्यक्ति या अधिकारी केवल एक शिकायत दाखिल कर सकता है और उस शिकायत पर यह जांच करना पुलिस का काम है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। वह ही एफआईआर के होने को तय करती है कि क्या अपराध हुआ है और यह भी पुलिस ही तय करती है। लेकिन प्रधानाचार्य के केस में ये सारी बातें उनके सीनियर अफसरों ने, मंत्रालय ने पहले से तय करके पुलिस को निर्देश दिया है कि वह केवल एफआईआर दर्ज करें और मामले को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, केवल मजिस्ट्रेट सेक्शन 156(3) में यह आदेश कर सकते हैं कि एफआईआर को दर्ज किया जाए कि ना किया जाए। शिक्षा मंत्रालय के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, तो फिर शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर यह एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? दूसरी बात यह है कि यह एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस नजर आता है। प्रधानाचार्य के साथ उसी तरह से व्यवहार नहीं किया गया है जैसे भारत के अन्य नागरिकों के साथ किया जाता है। आप लोग यह देखकर बताएं कि प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएं कि हिंदी और इंग्लिश भाषा के वीडियोस के विषय में हमें क्या नीति बनानी चाहिए।
हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।